Well, assalamu alaikum, dear students. I'm Engineer Abdul Basit, and we are almost in the final lecture of the design of compression members. Okay, this is the third part of this topic, particularly. Okay, so here we will solve a simple numerical. Already we have discussed the equation that needs to be used over here in the design of compression member. So based on those equations and those derivations, we will solve this numerical. This is a simple numerical where we have to adopt three different types of condition and have to design three different types of members for a particular compressive load. Okay, so straight away coming to the statement of the numerical, here it is: design a truss compression member using the following three given cross-sectional shapes. Okay, so here are the three given shapes. Number one, two legs are you can two angle shapes are double angle, okay, with 10 millimeter thick gusset plate that is placed in between these two angles. Okay, sorry for this little interruption. Okay, and this is a stuck tight bolted plate connection as well. So this last statement, stuck tight bolted connection, will help us to select the modified slenderness ratio, जिस तरह हमने वो previous tutorial में discuss किया है. And in the second part, we will take a single angle connected through a longer leg, and that will be designed for this compressive load that is given over here. Okay, and then W section को हमें design करना है according for this load and for this length. Okay, so the data that is given, or you can say that the load that is being applied on this member, that is the dead load PD, dead compressive load, that is 110 kilonewton, 110 kilonewton, and live load, a compressive live load, this P actually represent the live load, that compressive load condition, and this L is for live. So 140 kilonewton is the live load compression, and then the length is given, length of the member, that is 3.4 meter. Okay, and A36 steel should be used. So straight away, for truss members, normally we consider it that in the end conditions in the truss are simple hinge supports on the both ends. Okay, so K is taken as 1 for both end. For both ends, if we have hand support, so then K is taken as 1. So in truss is this is the condition to take K as equal to 1. So when K is equal to 1, मतलब इसका ये हुआ कि आपका जो unsupported length है, this will be equal to supported length. Our effective length will be equal to that unsupported length. Okay, as there is no bracing between the joints, ठीक है, कोई भी ब्रेसिंग नहीं है. ओके, और उसके बाद आप आ जाओ फैक्टर लोड फाइंड आउट करने पे. सो पी यू इज इक्वल टू 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड. इससे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, एंड दिस इज़ a bit distracted. यहाँ पे हमारे पास लाइव लोड 1.6 मल्टीप्लाई बाई लाइव लोड भी है, which is 140. ठीक है, सो इट्स मिसिंग ओवर है. ये स्लाइड में आप एडिट करके दोबारा देख लें. then double angles, it is placed over here like in this case. Okay, and that is gusset place is placed in between. यहाँ पे हमारे पास एंगल है, सो डबल एंगल हो गया. दरमियान में गसेट प्लेट है, कितने स्पेसिंग का, 10 का. ओके, और वेट हमारे पास टोटल कितना बन जाता है ऑफ द बिल्ट अप शेप, दैट इज बी. ओके, एंड दिस इज एच विच इज द length of one leg, and this A is the length of the other leg that is over here. Okay, now this would be the situation in the truss. जिस तरह हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में ये एक तरह का एक पार्ट कंसिडर किया था एक प्लेनर ट्रस में. ठीक है, तो ये वही चीज़ है. यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, ये गसेट प्लेट है, यहाँ पे स्टेप प्लेट्स लगे हुए हैं, एंड इन द क्रॉस सेक्शन यू विल सी इट लाइक दिस. ठीक है, या जिस तरह हमारे पास ये है. ठीक है, सो ये थोड़ा इन्वर्टेड है इसका. देन the section should be economical. All these discussions is given here, but we don't need to go through it. ये already मैं previous tutorial में बता चुका हूँ आपको. Straight away coming to the numerical. Okay, solution of the numerical. So here the projecting leg should be relatively smaller. Okay,
तो जिस लेग पे हमारे पास यू कैन से कनेक्शन बन रहा है तो वो तकरीबन थोड़ा सा स्मॉल होता है, लेकिन चलो वो डिस्कशन आप दूर दूर कर दो अभी। उसके बाद थोड़ी जो हम डिटेल में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लें, the load that is being determined from this equation is 356 kilonewton. This is the factor load. Let me make it clear for you people. uh, Here it was like यहाँ पे, I hope यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा अब। Yes, here it is. This is 356 kilonewton. Okay, so this was missing in the slide previously. Now coming to that detail, we have this load, factor load acting on it. Now we will select the assume slenderness ratio. तो कहाँ से slenderness ratio select करेंगे? Let me set it for you. So here is that slide from where we can take the assume slenderness ratio. ये हमारे पास है for single angle this is given as 125 and for channel section it is 115 and so on. Okay, हमने एक डबल एंगल सेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है, सो फॉर डबल एंगल और डब्ल्यू सेक्शंस इट विल बी इक्वल टू 90। सो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो अगेन बाय टेकिंग दिस assume slenderness ratio, according to this slenderness ratio we will take this 5 CFCR as well. So how to do it, let me go there. यहाँ पे हमारे पास slenderness ratio हमने 90 assume कर दिया है। Now go for that 90 and this table of design stress for compressive member of 250 MPa specific yield stress। ये हमारे पास 250 MPa yield stress है, लेकिन इसका कंप्रेशन मेंबर का या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका कितना होगा, ठीक है, इस मेंबर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्लेंडरनेस रेशो देख ले, विच इज़ एज्यूम्ड एज 90 फॉर द डबल एंगल सेक्शन। उसके हिसाब से आप 5 CFCR या जो हमारे पास डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वो सेलेक्ट कर ले, 5 CFCR इन दिस थर्ड कॉलम ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सो हियर इट इज़ 90, 5 CFCR 146.46 आ जाएगा, ठीक है जी। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे हमारे पास देखें 356 हमने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, 356 किलो न्यूटन। फिर हमने 90 सेलेक्ट किया है फॉर द डबल एंगल, और उसके हिसाब से फिर हमने टेबल से 5 CFCR ले लिया है विच इज़ 146 ऑन द पेज नंबर 105 इन LFD डिज़ाइन एड। उसके बाद आप आ जाओ एरिया रिक्वायर्ड पे। सो एरिया रिक्वायर्ड किस चीज़ के बराबर होता है? लोड डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ के, ठीक है। सो दिस इज दैट लोड PU एंड दिस इज डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ। Load multiplied by 1000 divided by strength is 146.46. This is the area that is required for this double angle section. Okay, so double angle refers to कि आपके पास दो सेक्शन, दो एंगल्स होंगे, तो आप इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लो तो आपके पास इतना एरिया आ जाएगा एक मेंबर के लिए। अब आप जाओगे पेज नंबर 59, 56 और जो 50s का जो हमारे पास वो है टेबल है इन RFD डिज़ाइन एड, वहाँ से आपको ये एरियाज मिल जाएंगे। हाउ? लेट मी गो देयर। सो हियर इट इज़, वी हैव डिफरेंट एंगल शेप्स गिवन, okay, in this part, this picture again different angle shapes are given like in this one, okay. So you will look for the area over here. यहाँ पे इस कॉलम में आपने एरिया देखना है which is required. The required area here is how much? That is 2431 and 1216. This is for a single angle, okay. So यहाँ पे हमने 1216 एरिया देखना है, ठीक है। सो हाउ टू डू इट? ओके, हेयर इट इज़ 1216, लुक फॉर इट ओवर हेयर। तो अगर हमारे पास ये एरिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट पेज। सो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर पेज ओवर हेयर, ठीक है। सो दैट्स वाई तरीका आपको समझ आ गया है कि यहाँ से आपने एरिया देखना है और यहाँ पे उसका रिस्पेक्टिव मेंबर आपने सेलेक्ट करना है फॉर द ट्रायल्स, ओके। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे हमने ये प्रोसेस कर दिया है सिलेक्शन ऑफ द एरिया। सो द एरिया सेलेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन द एरिया रिक्वायर्ड, ओके। एंड मिनिमम वेट का सेक्शन आपने सेलेक्ट करना है और उसका बी मिनिमम से ज़्यादा भी हो। और बी मिनिमम के लिए हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, ये मैं आपको
पिछले ट्यूटोरियल में समझा चुका हूँ 3.25 d plus 26 and 75 millimeter where d is 15 and L divided by 40 which is 85 or 50, ठीक है 50 से ज़्यादा होना चाहिए ये b। सो उसके बाद आप पेज नंबर 59 से आपने ये मेंबर सेलेक्ट कर दिए हैं एंड ये इस मेंबर का ये अलग एरिया नहीं है, दिस इज़ नॉट दैट इंडिविजुअल एरिया ऑफ द मेंबर, दिस इज़ द area multiplied by 2 of this member because this is two angles, okay, double angle. So if it is a double angle, so मतलब ये हुआ कि L89 multiplied by 89 multiplied by 7.9 का जो एरिया बनता है उसको multiplied by 2 कर लो, तो उससे हमारे पास 2700 एरिया आता है। और आपने जो टेबल से सेलेक्ट किया है ये वाला मेंबर, और उसका एरिया कितना था, डिवाइडिंग दिस 27 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 1350। ओके, सो ये हमारे पास सिचुएशन है। सिमिलरली फॉर ऑल दीज मेंबर्स आर हैविंग द एरिया ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया। उसके बाद आप इसमें से कोई भी एक मेंबर उठा लो और उस पर आप ट्रायल शुरू कर दो, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू लुक फॉर इज कि आपने इस लोड के लिए आपने के एक्स एल एक्स और के वाई एल वाई फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मूविंग बैकवर्ड, यहाँ पे देख ले के एल यू, एल हमारे पास जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ के बराबर है। सो के हमारे पास 1 है। सो लेंथ कितना गिवन था, दिस वाज 3.4, ओके। सो 3.4 multiplied by 1 will be equal to 3.4, okay, and in x direction in y direction both directions it is the same, ठीक है। so 3.4 हमारे पास आता है। अब इसके हिसाब से हमने एक टेबल मैंने आपको बताया था वो हमने देखना है, that is on page number 144, okay। so how to look for that table, यहाँ पे आप आ जाए ज़रा, let me minimize it first, यहाँ पे आप आ जाए, this is the table given to us। इस टेबल में ऊपर देख ले क्या चीज़ गिवन है, दिस इज ऑन पेज नंबर 44 एंड सो ऑन, आसपास के पेजेस पे भी ये मौजूद है अकॉर्डिंगली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डबल एंगल डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ये कंफर्म कर ले कि ये डबल एंगल का है। कॉलम्स डिज़ाइन कर रहे हैं, डबल एंगल डिज़ाइन कर रहे हैं। हम क्या चीज़ चाहते हैं इस टेबल से, डिज़ाइन एक्सियल स्ट्रेंथ इन किलो न्यूटन हम चाह रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ फाई इज इक्वल टू 0.9, ये हमारे पास इसका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है जो इस टेबल में इस्तेमाल हुआ है। अनइक्वल लेग्स, लॉन्ग लेग्स इज 10 मिलीमीटर बैक टू बैक ऑफ एंगल्स, तो ये एक और कंडीशन हो गया जिसके लिए आप ये टेबल इस्तेमाल करोगे। नाउ मूविंग ऑन, इस फर्स्ट रो में आपके पास साइजेस गिवन है, जैसे कि एंगल शेप्स हमारे पास कैसे डिस्क्राइब होता है, L102 मल्टीप्लाइड बाई 76 मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, तो थिकनेस हमारे पास दिस इज वन लेग, दिस इज अदर लेग मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, सो थिकनेस कौन सा होगा, this is thickness multiplied by 12.7, 102 multiplied by 76 multiplied by 12.7 multiplied by 9.5, or 102 multiplied by 76 multiplied by 7.9 and so on। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी है 89 multiplied by 76 multiplied by 9.5 भी हो सकता है, 7.9 भी हो सकता है, और ये these are the thicknesses and this is the these are the lengths of the legs, okay। यहाँ पे वेट भी गिवन है हर एक मेंबर का, अगर हमारे पास मेंबर होगा 102 मल्टीप्लाइड बाई 76 मल्टीप्लाइड बाई 12.7 तो उसका वेट कितना होगा, ये होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और उस सब का एफ वाई हमारे पास 250 मतलब A36 स्टील के लिए टेबल बनाया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लें दैट दैट इफेक्टिव लेंथ आपके पास क्या आया था, के डिवाइड मल्टीप्लाई बाई एल यू, दैट इज दैट वाज 3.4, ओके। तो उस 3.4 को आप यहाँ पे देख ले, ओके। दिस कॉलम इज एक्चुअली फॉर इफेक्टिव लेंथ के एल विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड एक्सेस, सो ये एक्स एक्सेस के लिए है, ये वाई एक्सेस के लिए है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख लें, फॉर एक्स एक्सेस वी हैव टू लुक फॉर द वैल्यू 3.4, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू मौजूद है, 3.5 की है लेकिन 3.4 की नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा दूं कि लेट से अगर आपके पास इफेक्टिव लेंथ 3 के बराबर हो तो आपकी स्ट्रेट अवे जो स्ट्रेंथ होगी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी, 587.8, और आप देख ले कि आपके पास रिक्वायर्ड या जो अप्लाइड लोड है वो कितना है, दिस वाज 356
सो दिस इज ग्रेटर देन 356, सो ये मेंबर आपका पास हो गया। कौन सा मेंबर? 102 मल्टीप्लाइड बाई 76 मल्टीप्लाइड बाई 12.7, ये मेंबर आपका ये लोड ले सकता है। ठीक है, सम टाइम आपके पास इस तरह कंडीशन होगी कि द effective length factor is equal to 3.4, so it's not given over here. Then you have to interpolate the value between this 3 and 3.4 for the required value of 3.4. ओके, सो 3.5 और 3 के दरमियान आप इसको इंटरपोलेट करोगे और 3.4 फाइंड आउट करोगे। सिमिलरली इन दो वैल्यूज को इंटरपोलेट कर लोगे। सो यहाँ पे आपके पास x1, x2, x3 गिवन होगा। x1 विल बी यूर 3, x2 विल बी यूर 3.5 और x3 विल बी 3.4। यहाँ पे हमारे पास y1, y2 गिवन है, y3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इन दोनों के दरमियान। सो इट इज सिंपल इंटरपोलेशन प्रोसेस, वो आपने करना है एंड दीज वर द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हमारे पास 3 और 3 की वैल्यू है, 3.4 हमने इंटरपोलेशन से ले ली है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली इन द एक्स डायरेक्शन, इन द वाई डायरेक्शन हमने कर दिया है और ये फॉर द फर्स्ट मेंबर का ट्रायल है। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर रिक्वायर्ड है, दिस वन। ठीक है, इसका ट्रायल मैंने कर दिया। अब इसका भी आप ट्रायल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इसका ट्रायल है और अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर सकते हो। सो दिस इज़ वन वे टू डू दिस कि आपका जो अप्लाइड लोड है वो ये मेंबर्स बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, इसके बाद फिर चेक्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एंड ये वही चीज़ें हैं जो मैं अभी दिखा रहा था। ये हमारे पास चेक्स शुरू हो गए, ट्रायल हमने शुरू कर दिया है इस फर्स्ट मेंबर पे, जिसका एरिया इतना है 1600 एरिया है, मल्टीप्लाइड बाई 2 से ये 3200 हो गया है। अब आप देख ले उसका बी देख ले, कहाँ से मिलेगा? LRFD डिज़ाइन 8 से मिलेगा। वो आपने देख लिया है 102 मिलीमीटर विच इज़ ग्रेटर देन बी मिनिमम। लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड, बाकी सब तो आप सिंपल चीज़ें हैं। नाउ लुक फॉर द लोकल इंस्टेबिलिटी। तो एंगल्स में हमारे पास लोकल इंस्टेबिलिटी लेमडा बी डिवाइड बाई टी के बराबर होता है और आप उसको लेमडा आर के साथ कंपेयर कर ले। ओके, सो दिस इज दैट लोकल स्लेंडरनेस रेशो आर लोकल इंस्टेबिलिटी के लिए चेक होता है बी डिवाइड बाई टी। हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेंबर 102 इज द लेग। ओके, लॉन्गर लेग जो हमारे पास है उसके साथ ये कनेक्टेड है। सो हमने स्लेंडरनेस रेशो इसकी चेक करनी है। 102 डिवाइडेड बाई थिकनेस विच इज 9.5 एंड विच इज इक्वल टू 10.7। दिस शुड बी लेस देन लेमडा आर। लेमडा आर कहाँ से लेंगे? फ्रॉम हेयर। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द previous tutorial I hope। हाँ, here it is, यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, सो हमने देखना है फ्लेंचेस के लिए और एंगल के लिए, सिंगल एंगल के लिए लेग्स ऑफ सिंगल एंगल ट्रस। हियर इट इज, तो 12.7। ठीक है, सो लेमडा आर इज गिवन टू यू फॉर A36 steel, this is 12.7। so your lambda that you have determined or your local slenderness ratio, that should be less than this 12.7। ओके, सो इट इज़ ओके, एक हो गया। उसके बाद आप उसी टेबल से जहाँ से आपने मेंबर सेलेक्ट किया है वहाँ से आपको RX मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर ले और फिर आ जाए आप अपने बी पे। सो बी आपका कितना हो जाएगा टोटल? ये से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इन द डायग्राम यू कैन सी, ये साइड अगर हमारे पास 76 है, ये भी 76 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 76 प्लस 76 प्लस 10, तो ये आपके पास बी आ जाएगा। ठीक है, और एच हमारे पास कितना होगा? 102। दिस इज द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड पे ये कनेक्टेड है ना, तो दिस इज लॉन्गर लेग। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप आ जाओ, ये आपके पास सिचुएशन हो गई है। आपके पास आर वाई अब आपने फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे और यू कैन से अप्रोक्सीमेट वे टू डू इट, कि आप ये फार्मूला यूज कर लो फॉर दैट टाइप ऑफ बिल्टअप कंडीशन वेयर बी इज द ब्रेथ, 0.9 the requirement of the formula, s is the spacing between these two double angles, okay, and divided by 12.7 is the requirement of the formula। ओके, सो ये आप पुट कर ले, आर अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाएगा। नहीं तो आपने दूसरा तरीका अप्लाई करना है और वो वही तरीका है जो हमने डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स के लिए किया था और वहाँ पे हमने पहले फाइंड आउट किया है बिल्ट अप मेंबर के लिए मॉडिफाइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया
उससे फिर हमने रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड किया है, और फिर उसके बाद हमने उस रेडियस ऑफ जायरेशन को स्लेंडरनेस रेशो में इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो उसी तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वे न्यू फार्मूला, आप ये यूज़ करो, सो इट विल गिव यू एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड विल हेल्प यू टू परफॉर्म दिस ट्रायल। उसके बाद आप इसको परफेक्ट वैल्यू आप उसकी फाइंड आउट कर सकते हो। सो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, 32 is the answer and here it is 32.0, this is 32.06, so ये वाला ज़्यादा है। ठीक है, आप इसकी x एक्सिस पे ओवरऑल स्लेंडरनेस रेशो देख ले, y एक्सिस पे ओवरऑल स्लेंडरनेस रेशो देख ले। सो हियर इट इज़ 107, यहाँ पे 106 है। ठीक है जी, अब आप शुरू हो जाए अपना पिछले ट्यूटोरियल में जो हमने बताया था, मैंने आपको बताया था, दैट वाज कि आपका जो ए है, दिस इज़ द स्पेसिंग बिटवीन द स्टेपलेट्स, और नॉर्मली हमारे पास स्टेपलेट्स की थिकनेस हम कितनी कंसिडर करते हैं, 75 मिलीमीटर। तो टोटल आपके पास ए प्लस 75 मिलीमीटर हो जाएगा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाए ए डिवाइड बाई आर। मैंने आपको बताया था दिस इज दैट इंडिविजुअल स्लेंडरनेस रेशो ऑफ द मेंबर्स बिटवीन द स्टेपलेट्स, एंड दैट should not be greater than the 75% of the overall slenderness ratio of the built up member. Okay, so that's why it is multiplied by 0.75 multiplied by larger of these two x axis पे y axis पे slenderness ratio दोनों multiply कर ले, this will be 80.25. ठीक है, ri, this is that radius of gyration in any of these three directions x, y और z, जो भी minimum होगा वो आप ले ले। this is 16.4 is the minimum of all these three. a maximum हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इस 80 को आप मल्टीप्लाई कर लो 16 के साथ, और ये इक्वेशन दोबारा से इस्तेमाल करके a आप फाइंड आउट कर सकते हो। इफ a is this much, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट। यहाँ पे लेट्स से दिस इज वन मेंबर, दिस इज द अदर मेंबर, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट स्ट्रेट, बट जो भी है हमारे पास, यहाँ पे एक स्टेपलेट है, यहाँ पे एक स्टेपलेट है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर हमारे पास हो गया है दिस थिंग, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है जी, इफ दिस इज 1.316 मीटर, और टोटल हमारे पास कितना है, दिस इज हाउ मच, 3.4 मीटर्स। ओके, 3.4 मीटर्स है हमारे पास। ठीक है, तो एक स्पेसिंग हमारे पास कितना हुआ, इतना, टोटल हमारे पास कितना है ये, सो दिस टोटल डिवाइडेड बाय दिस वन स्पेसिंग, तो आपके पास नंबर ऑफ स्पेसिंग्स आ जाएगी। तो कितनी होगी नंबर ऑफ स्पेसिंग, देखें 340, और यू कैन से मल्टीप्लाइंग दिस बाय 1000, तो कि मीटर मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पेसिंग्स, तो कितने स्पेसिंग होंगे, 1 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, 3 स्पेसिंग्स हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख ले, वाई दिस 75 इज 8 बिकॉज हमारे पास दिस इज नॉट द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ओके, हमें सेंटर टू सेंटर चाहिए, सो दैट्स वाई हमने इसके साथ ये थिकनेस भी इसकी मल्टीप्लाई प्लस कर ली, और इसकी भी थिकनेस हमने इसके साथ प्लस कर दी, हाफ थिकनेस, सो दिस इज इक्वल टू द फुल थिकनेस 75। सो 2.45 हमारे पास आ गया है, से दिस इज 3 स्पेसिंग्स, तकरीबन 3 स्पेसिंग्स हो गए हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ आगे, लेट मी क्लोज इट फर्स्ट। ओके, मूविंग ऑन, नंबर ऑफ स्टेपलेट्स, जब 3 स्पेसिंग आपने देनी है तो 2 स्टेपलेट्स हो जाएंगे। ए विल बी इक्वल टू दिस थिंग, अगेन आप उसको रिपीट कर ले फॉर द 3 स्पेसिंग, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस इज ए। ओके, नाउ ए डिवाइड बाई आर, आई दोनों आपके पास अब एग्जैक्ट फॉर्म में आ गई है, आप उसको पुट कर ले, एंड फिर मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो के फार्मूले में देख ले। सो मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो इज इक्वल टू दिस थिंग, विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ द ओवरऑल स्लेंडरनेस रेशो प्लस इंडिविजुअल स्लेंडरनेस रेशो। सो दिस इज इंडिविजुअल स्लेंडरनेस रेशो, ए डिवाइड बाई आर आई आ गया, उसका स्क्वायर, और ओवरऑल स्लेंडरनेस रेशो द लेजर ऑफ दीज टू विच इज 106.6। ओके, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, स्क्वायर ले लिया है 125। नाउ हमने एज्यूम स्लेंडरनेस रेशो स्टार्ट में लिया था, which hasn't worked for us। ठीक है, अभी वो हमारे पास जस्ट एक ट्रायल उसने परफॉर्म कर दिया है। नाउ वी आर इन द एग्जैक्ट स्लेंडरनेस रेशो ऑफ दिस मेंबर।
ओके अब इसके लिए आप अगेन 5 CFCR देख लो. सो दिस एग्जैक्ट इज 125 विच इज लेस देन 200. ओके हो गया. अब 5 CFCR इसके लिए चेक कर लो. ठीक है. सो फ्रॉम वेयर टू डू इट, फ्रॉम हेयर इट इज. ठीक है. अब 125 के लिए, सो दिस इज नॉट वर्किंग नाउ. 125, दिस इज स्लेंडरनेस रेशो. ओके 125. उसके लिए आप देख लें 98.28 इज द वैल्यू फॉर 5 CFCR. ठीक है जी. तो आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लो. ठीक है. एंड दिस इज 9.8. अब इसके साथ आप एरिया मल्टीप्लाई कर लो. सो 2 इज फॉर द टू मेंबर्स, 2 लेग्स है. 16 इज द एरिया डिवाइड बाई 1000 से आप किलो न्यूटन में चले जाओगे विच इज 314.5. दिस इज लेस देन द अप्लाइड लोड. सो ये तो फेल हो गया. सो अगर हमारे पास ये फेल हो गया, यू हैव टू रिपीट द ट्रायल्स फॉर द नेक्स्ट मेंबर. सो अगेन आप बी मिनिमम देख लो. उसके बाद आप लोकल इंस्टेबिलिटी देख लो. उसके बाद आप अप्रोक्सीमेट आर वाई फाइंड आउट कर लो, सेम फार्मूले. उसके बाद आप एग्जैक्ट पे भी आ सकते हो. मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट कैसे फाइंड आउट हो. सो दिस इज हाउ टू डू इट. तो ये हम बार बार कर चुके हैं, नो नीड टू रिपीट इट. अच्छा, ये स्लेंडरनेस रेशो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में. ठीक है. अब इसके हिसाब से आप वही फाइंड आउट कर लो द individual slenderness ratio a divided by r. I 75% of the greater of these two. ओके तो इनमें से हमने ले लिया है. अब इसके दिस इज द रेडियस ऑफ gyration फॉर इन द z डायरेक्शन फॉर दैट एंगल शेप, हमने जो अभी जिस पे ट्रायल शुरू किया है. और ए मैक्सिमम हम इसी से फाइंड आउट कर लेंगे बाय द सेम प्रोसेस. ठीक है जी. उसी से हमने नंबर ऑफ हमने मेंबर्स फाइंड आउट कर दिए हैं. ठीक है. नंबर ऑफ स्पेसिंग्स फाइंड आउट कर दिए है. वही पुराना तरीका है. ठीक है. और उसके साथ फिर हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड किए हैं. देन वी हैव टू फाइंड आउट द मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो. ठीक है. एंड रिपीट द प्रोसेस. दिस स्लेंडरनेस रेशो इज 107 विच इज लेस देन 200. 107 के लिए अब आप चेक कर लो. सो मूविंग बैक टू दैट टेबल, इट इज 107 के लिए आप देख लो. हियर इट इज, दिस इज 122.63. ओके. सो आपने यही इस्तेमाल कर देना है, 122.63. ओके, हेयर इट इज. नाउ इसके बाद 5 CFCR आपने जो ओरिजिनल इसका स्ट्रेंथ है ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ द दैट मेंबर. ओके. सो आप हमने फाइंड आउट कर दिया है. दिस इज 421.63 किलो न्यूटन. ओके, विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अप्लाइड लोड. सो ये पास हो गया. ठीक है. एंड दिस इज आवर फाइनल सिलेक्शन. सो व्हाट आई वांट टू मेंशन ओवर हियर इज कि आपके पास जो मेंबर है ना, दैट मेंबर इज एक्चुअली जो डबल एंगल हमने सेलेक्ट कर दिया है उसको हमने 2 तरीकों से उसके ट्रायल कर दिए है और उसको चेक कर दिया है कि इट इज पास और फेल. नंबर 1, ये जो पूरा प्रोसेस हमने ट्रायल किया है 2 दफ़ा ये. और दूसरा हमने डायरेक्ट से फाइंड आउट कर दिया है फ्रॉम दिस टेबल फॉर द डिज़ाइन ऑफ एक्सियल स्ट्रेंथ इन किलो न्यूटन. जो टेबल हमारे पास गिवन है इसमें से वैल्यूज़ लेके हमने चेक कर दिया है कि जो मेंबर हम जिस पे ट्रायल कर रहे हैं वेदर इट इज़ ओके अगेंस्ट द अप्लाइड लोड और नॉट. ठीक है जी. तो इस ट्रायल में हमारे पास सिर्फ लोड का पता चल जाता है, बाकी लोकल इंस्टेबिलिटी, उसके अलावा हमारे पास द चेक्स फॉर स्लेंडरनेस रेशो और बहुत सारी चेक्स, मिनिमम का चेक और वगैरह वगैरह, ये हमने नहीं किए. तो वो दूसरे ट्रायल में हो जाते हैं. सो फॉर द solving of your this numerical in your papers, it will be important to solve it on by using both the ways, both the trials. इस तरह भी और दूसरा ये numerical trial भी करना है आपने, टेबल भी यूज़ करना है आपने. ठीक है. और सिमिलरली फॉर द डिज़ाइन, प्रैक्टिकल डिज़ाइंस भी आप यही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे. सो यू विल बी मोर श्योर अबाउट योर डिज़ाइन के इट इज़ करेक्ट. यहाँ पे आप आ जाए. मूविंग ऑन टू सिंगल एंगल कनेक्टेड टू लॉन्गर लेग. ओके, हाउ टू वर्क ऑन इट. तो अब आप आ जाए यहाँ पे. लेट से हमारे पास इस तरह एंगल है, सिंगल एंगल कनेक्ट हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आ जाए कि इसके लिए हम लोड तो वही है ना 356, उसी प्रॉब्लम की कंटिन्यूएशन सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं जिसमें हम सिंगल एंगल को डिज़ाइन करेंगे फॉर दिस लोड. अब एज्यूम स्लेंडरनेस रेशो आप सेलेक्ट कर ले. फ्रॉम वेयर टू डू इट, दिस इज द एज्यूम स्लेंडरनेस रेशो.
This is assumed slenderness ratio. So for single angle, how much it is? This is equal to R is 125. ओके तो इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर ले R is 125 और उसके लिए आपके पास 5 CFCR तो आप बार बार इसको देख चुके हो फॉर 125 दिस इज 98.28 ओके तो ये आपने सेलेक्ट कर दिया है उसके बाद आप मूविंग ऑन इसके लिए आप एरिया फाइंड कर ले सो दिस इज द लोड दिस इज द स्ट्रेंथ लोड के साथ 1000 मल्टीप्लाई कर लिया है किलो न्यूटन से न्यूटन में आने के लिए रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ गया है now this is single angle no need to divide this area by 2 ओके क्योंकि हम सिंगल एंगल की बात कर रहे हैं सो इट इज वर्किंग फॉर अस ये चीज हमारा काम कर रही है नाउ सेलेक्ट द सेक्शन सो कैसे सेलेक्ट करेंगे एरिया सेलेक्टेड शुड बी ग्रेटर देन एरिया रिक्वायर्ड मिनिमम वेट होना चाहिए और बी शुड बी ग्रेटर देन बी मिनिमम तरीका क्या है कि एटलीस्ट 50 से ज़्यादा होना चाहिए और उसके बाद L डिवाइड बाई 40 और 3.2526 D प्लस 26 ये हमारे पास एक तरीका है तीनों से आपने चेक करने हैं जिस तरह हम बार बार करते आ रहे हैं अब सिंगल एंगल है उसके लिए सारी प्रॉपर्टीज़ उसके फ्रॉम पेज नंबर 59 ऑफ LRFD डिज़ाइन एड से आप देख लें ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी बी में मिल जाएगा एंड दैट इज़ ग्रेटर देन बी मिनिमम इट इज़ वर्किंग फिर लोकल इंस्टेबिलिटी बी डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू अगेन वही टी हमारे पास हमने जो सेक्शन लिया है उसका थिकनेस 12.7 है here it is and उसका एक लेग 152 है दूसरा भी 152 है so not the larger leg ठीक है दोनों पे हम सेम है तो दोनों पे हम प्रोसेस कर देंगे दोनों हमारे पास 152 है so this is 11.7 और सिंगल एंगल के लिए हमारे पास 12.7 ओके इट इज वर्किंग ओके सो KL divided by RZ अब हमारे पास slenderness ratio in both x axis y axis z axis in all you need to determine it ओके लेकिन जब हम z एक्सिस की बात करते हैं तो वो तो स्ट्रेट अवे फाइंड आउट हो जाएगा y एक्सिस की बात करें उसमें भी k हमारे पास 1 है स्ट्रेट अवे फाइंड आउट हो जाएगा नाउ मूविंग टू द मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो तो मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो का जो फॉर्मूला होता है फॉर द डबल एंगल वो तो मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस में एंड दैट इज गिवन ओवर हियर इन दिस न्यूमेरिकल हियर ओके modified slenderness ratio is equal to the overall slenderness ratio plus A divided by Ri which is the individual slenderness ratio दोनों का स्क्वायर अंडर द रूट ठीक है जी सो यहाँ से इस तरह फाइंड आउट हो जाए लेकिन ये तो बिल्टअप मेंबर के लिए है सिंगल एंगल के लिए हम कैसे करेंगे उसके लिए तरीका ये है कि आइदर इट विल बी इक्वल टू दिस थिंग और जो भी हमारे पास डिफरेंट होंगे कहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द दैट प्लेनर ट्रसेस ठीक है प्लेनर ट्रसेस के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल था एक इक्वेशन था वो मैं ज़रा आपको समझा दूँ ठीक है आई होप इसी लेक्चर में था वो ठीक है हियर इट इज़ here it is for the planar trusses you can see when L divided by X Rx is between 0 and 80 so you have to use this value for the modified slenderness ratio which is KL divided by R75 and so on if L divided by Rx is greater than 80 then you have to use this equation okay for space trusses this is for planar truss for space trusses it will be like this ठीक है जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो प्लेनर ट्रसेस में है तो ये हो गया सेलेक्ट ठीक है उसके बाद हमारे पास L डिवाइड बाई R की वैल्यू 75 है विच इज़ लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन 0 सो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन विच इज़ KL डिवाइड बाई R विच इज़ इक्वल टू 72 प्लस 0.75 L डिवाइडेड बाई RX ओके सो दिस इज दैट इक्वेशन यू हैव टू यूज इट ओवर हियर यहाँ पे आपके पास ये सेम इक्वेशन है कैन यू सी इट ओके दिस इज अगेन वाई बिकॉज दिस इज लेस देन L डिवाइड बाई RY या RX हमारे पास कितना है 80 से कम है और 0 से ज़्यादा है सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव टू यूज फॉर द सिंगल एंगल मॉडिफाइड स्लेंडरनेस रेशो सो ये हमने फाइंड आउट कर दिया है सो नो नीड टू डू दैट लॉन्ग प्रोसेस टू फाइंड आउट ए और ये चीज़ें सब फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट अवे आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लो ऑल द terms given or variables given here are also given in the statements so 126 is less than 200 it is okay इसके लिए आप अब
5 CFCR देख लो, सो फ्रॉम वेयर, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं से आप देख लें, ठीक है। 5 CFCR एंड 5 CFCR इंटू एरिया सेलेक्टेड इज, ये हो गया 96.98 मल्टीप्लाइड बाई 3710, ओके, डिवाइड बाई 1000। सो ये आपके पास आ गया है the strength of this single angle, okay, which is greater than 356. So it is okay, no need to do this loading cycles trial, और फाइनल सिलेक्शन हमारे पास यही हो गया, नो नीड टू रिपीट द ट्रायल एज वेल, ओके जी। उसके बाद आप आ जाओ डब्ल्यू सेक्शन पे। सो अगेन वही लोड हो गया। डब्ल्यू सेक्शन के लिए आर एज्यूम कितना होता है, दिस इज 90। 5 CFCR हमारे पास 90 के लिए 146 होता है। एरिया रिक्वायर्ड आप फाइंड आउट करोगे 356 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 146 से। दिस इज द एरिया ऑफ द डब्ल्यू सेक्शन दैट नीड्स टू बी सेलेक्टेड। सो हियर इज हाउ टू सेलेक्ट द मेंबर्स, ओके, ये हमने सेलेक्ट कर दिया है। First of all, we have selected this W150 multiplied by 22.5. Okay, and this is having the same the same area, or the area somehow greater than that of the required area, which is 2431 millimeter square. Okay, so इस पे हमने ट्रायल शुरू कर दिया है, ठीक है। so इस मेंबर पे जब आप ट्रायल करोगे, सबसे पहले आपके पास ये तरीका है, ये ट्रायल आपने करना है। ये ट्रायल हमने सिंगल एंगल के लिए नहीं किया, हमने डबल एंगल के लिए किया है और डब्ल्यू सेक्शन के लिए है। सो यू हैव टू डू द सेम, ओके। फॉर द लोड अप्लाइड इज दिस मच, ठीक है। और सिंगल एंगल के लिए के वाई एल वाई हमारे पास ये है डब्ल्यू सेक्शन के लिए, और दिस इज दैट स्ट्रेंथ गिवन फ्रॉम द टेबल। सो फ्रॉम हियर टू टेक दिस स्ट्रेंथ, अब डब्ल्यू सेक्शन के लिए हमारे पास अलग टेबल मौजूद है। यहाँ पे आ जाते हैं, I guess it is somewhere here, here it is। यहाँ पे आप देख लें, हम कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, नॉट डबल एंगल, दिस इज डब्ल्यू शेप नाउ। डिजाइन एक्सियल स्ट्रेंथ इन किलो न्यूटन, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। लेट मी लुक फॉर दिस चार्ज here, it is okay, okay। then 150 multiplied by 22 पर, so this is the member। इसके लिए आप 3.4 देख ले, 3 ये है, 3.2 ये है, दिस इज 3.5। तो 3.2 3.2 3.5 के दरमियान इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, उसको इंटरपोलेट करेंगे। सो दिस इज 22.1 W150 मल्टीप्लाइड बाई 22.5। उसके लिए आप देख लें अगेंस्ट 3.2 एंड 3.5। सो डेफिनेटली ये पास तो होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान वैल्यू होगी, सो इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 356, ठीक है। तो पास तो होगा ये, ठीक है। लेकिन यू हैव टू डिटरमिन इट बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर द वैल्यू ऑफ 3.4 इफेक्टिव लेंथ, ओके। तो ये आप प्रोसेस कर लोगे जिस तरह हमने डबल एंगल के लिए किया है। उसके बाद आपके पास ट्रायल का भी अपना तरीका है, लेकिन ट्रायल में यहाँ पे सारी वैल्यूज तो आप ले लोगे LRFD डिज़ाइन 8 से पेज नंबर 22 एंड आसपास के पेजेस में, ठीक है। BF डिवाइड बाई 2 इज दैट अनस्टेप्ड पार्ट, ठीक है। सो इसका लेमडा हम कैसे फाइंड करेंगे, BF डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई TF, ओके। तो ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ। एंड उसी तरह आप उस टेबल में चले जाओगे और इसके लिए लेमडा आर देख लोगे, ठीक है। सो लेमडा आर फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल इज गिवन ओवर हियर, हियर इट इज लेमडा आर, okay। This is for flanges of the W shape, this is 15.8, and similarly for the web it is 42.1, and the stiffed web, ठीक है, this is our stiff part, जो stiff हमारे पास webs ही होते हैं, so that's why this is 42.2 42.1। so यहाँ से आप select कर ले इसको, here it is lambda is equal to 11.5 which is greater than lambda r given in the table, and stiffed part के लिए it is for the web this is 21.6 and this is again less than lambda r, so दोनों हमारे पास हो गए। उसके बाद आप रेडियस ये स्लेंडरनेस रेशो फाइंड आउट कर लें, ठीक है। KL डिवाइड बाई आर मिनिमम से दिस इज 92 विच इज ग्रेटर देन 200, सो 92 के लिए अब आप 5 CFCR चेक कर लें फ्रॉम दैट टेबल गिवन इन पेज नंबर 104, ओके। सो ये आपके पास हो गया 5 CFCR area selected which is equal to
एरिया हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 सी आर वैल्यू ये है डिवाइड बाई 1000 से किलो न्यूटन में आ जाएंगे. सो दिस इज 411 किलो न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 356 किलो न्यूटन. So this is okay. This is the final selection. No need to repeat this trial again. Okay, for the next member. Why? Because जो इसका स्ट्रेंथ है दिस इज ग्रेटर देन द अप्लाइड लोड. और दूसरी बात हमारे पास जो भी दरमियान में हमने चेक्स अप्लाई किए हैं सारे पास हो गए हैं. ठीक है. सो दिस इज योर फाइनल सिलेक्शन. ओके. एंड इसी बेस पे हमारे पास कुछ और भी न्यूमेरिकल है इन द सेम टाइप ऑफ द सेम टाइप. ठीक है. वो आप इसी तरह परफॉर्म कर सकते हो खुद ही. ठीक है. सो आई रिकमेंड को उस पर आप एक प्रैक्टिस कर लो. और दैट इज़ द एंड ऑफ आवर कोर्स आउटलाइन. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. अस्सलाम वालेकुम.